Hello everyone, welcome to our channel SY Technology Services, and in this video we will see the Linux commands. Okay, what are the Linux commands? And we will practice some basic Linux commands and perform some operations. Okay, so if you are new and if you are watching this video for the first time in our channel, I recommend you to visit to our channel, and I'll be giving you some links in the description to watch the previous videos where we have already uh, talked about what is virtualization and regarding the VMware workstation and how to create the virtual machine. We have installed the Ubuntu Linux operating system, and in the previous video we have discussed about the history of Linux, Unix and architecture, and regarding the important concept, theoretical parts and practical as well. So kindly refer to the previous videos as well to get some clarity. Okay, and in this video uh, we are going to discuss some basic Linux commands. Okay, where we can get some knowledge to perform to manage the Linux operating system, to work on Linux operating system. You can perform these commands. Okay, so ये वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे what is CMD, what is GUI, graphical user interface, command line interface, and some basic Linux commands. ये हम practice करने वाले हैं. तो this is our this is our Ubuntu operating system which we are running on virtual machine. This is my Windows operating system. On the top of the Windows operating system, I have installed the VMware workstation, and in that VMware workstation, I am running Ubuntu Linux operating system as a virtual machine. Okay, got the concept? And in this Ubuntu operating system, we have graphical user interface. Now it's coming with the graphical user interface, and there is command line interface also. So let us first go through the graphical user interface. This is the interface, this is the desktop where you will find the home directory. Home directory is available here. If you double click the home directory, it will open. There are Apple, like other directories, desktop, document, downloads, movies, music, and others. Same like Windows also. In the desktop you will have the directory, and in this directory you will find pictures, videos, and this other kind of folders. So in Windows we will call it as folders, but in Linux we will call it as directory. Okay, and this is the home directory, and this is the desktop, and you have the application, some basic application installed. Okay, this is trash. Trash is like recycle bin. Okay, same as recycle bin which we have in Windows operating system. Here we have trash. Okay, this is the CD-ROM, floppy disk, and this is the Ubuntu software where you can download the applications which you need to perform some basic operation and all. Any type of application you will find it here. So if we open this one, uh, you will find, see this one. You can download like any software you want. You can download it from here. Regarding any kind of stuff, you will get it here. Okay, so this is the store for downloading this. This is same like Microsoft Office. This is LibreOffice, and this is files. This is browser like Chrome and Firefox. This is Firefox browser. So these are the all application which you will find in Ubuntu. Okay, this is the basic application which you will find here. Okay, so let's come to the terminal. Okay, now we will open the terminal. This is the terminal. So when you open the terminal, it's here. This is terminal. This is the terminal. यहाँ पे ही हम लोग सारे commands डालेंगे basically.
सारे कमांड्स इधर से ही रन होंगे। सो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे है एस यासीन एट एस यासीन वर्चुअल मशीन। सो हम लोग अभी करंटली एक टर्मिनल में है जहां पे हम लोग कमांड्स रन करेंगे और एस यासीन ये यूजर है, ये यूजर के अंडर हम लोग ये सारे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ये, दैट इज डॉलर। अगर बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अभी हम लोग कमांड्स रन करने वाले हैं, तो व्हाट इज कमांड, व्हाट इज बेसिकली ए कमांड इज, सो इट इज ए बाइनरी फाइल, it is a binary file kept under specific directory। सो ये एक बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल बेसिकली आप लोग को नहीं पता है तो बताता हूं कि एक बाइनरी फाइल होती है जिसमें हर चीज whatever the arguments you are passing to the computer, you are passing to the CPU or processor, so that everything is written in 0 and 1। अगर आप पास कर रहे हो एक कमांड, वो कन्वर्ट होगा 0 एंड 1 में। सो कंप्यूटर आपका सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज जीरोस एंड वंस। ओके, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वी विल मेक, अलग से एक वीडियो बनाएंगे बाइनरी लैंग्वेज एंड उसके कौन से ऑपरेशंस होते हैं, 0 1 और उसके सारे कुछ चीजें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अभी ये समझना है कि दैट इज केप्ट अंडर ए स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर आपको ये सारे कुछ होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था डॉलर प्रॉम्प्ट की, ठीक है। दो टाइप के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, एक डॉलर प्रॉम्प्ट होता है, एक हैश प्रॉम्प्ट होता है। डॉलर प्रॉम्प्ट ये सिंबल करता है कि द ऑपरेशन विच वी आर परफॉर्मिंग, सो हम लोग दैट इज ए नॉर्मल यूजर। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ये मैं नॉर्मल यूजर की तरह परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसा आप अगर कंसीडर करेंगे पैरेलली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे आप नॉर्मल एज ए नॉर्मल यूजर आप सब कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आप वीडियोस प्ले कर रहे हो, फाइल्स क्रिएट कर रहे हो, फोल्डर्स क्रिएट कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, सब बेसिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। सेम इधर डॉलर प्रॉम्प्ट के अंडर आप जो भी काम करोगे सब बेसिक ऑपरेशन, सब ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कुछ सेटअप फाइल इंस्टॉल करना है या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट करना है, वो टाइम पे सिस्टम विल आस्क यू दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। ओके, सो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आपको फिर उधर सेपरेटली एक्सप्लिसिटली आपको देना पड़ता है विंडोज में भी, के रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप जो है उसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तभी वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर उसको रिक्वायर्ड पासवर्ड चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो वो टाइम पे आपको पासवर्ड इंटर करके रन करना पड़ेगा, जब भी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सेम लाइक हियर इन द यूनिक्स और द लाइनक्स इन्वायरमेंट, हम लोग को डॉलर प्रॉम्प्ट से हैश प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। डॉलर प्रॉम्प्ट आपका सिंपली नॉर्मल यूजर हो गया, हैश प्रॉम्प्ट आपका रूट यूजर हो गया। तो लेट्स सी ए प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ यू कैन स्विच टू ए hash prompt root user। hash prompt is a root user, administrative user। okay, so if I press sudo hyphen I, okay, this is a command used to change the user from a normal user to the root user। if I press enter, it will ask me, okay, sorry, it is a spelling mistake, sudo space and hyphen I। if I press enter, sudo space hyphen I, sorry guys for the typing mistake। so now it is asking me the password, okay, password for the user s yasin। okay, so I'm entering the password now। if I press enter, now see the difference, it is the user at this virtual machine followed by an dollar prompt। okay, now here if you see, this is root at this virtual machine followed by a hash prompt, that is administrative privileges। so these are two types of prompts which are in the terminal you have to learn। okay, let's say you have done your work। अभी हैश प्रॉम्प्ट के अंदर कौन से प्रिविलेजेस होते हैं, आपको वो कब यूज करना है, वो लेटर ऑन जैसे जैसे आप बेसिक कमांड्स यूज करेंगे उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि कैसा आप इसको स्विच कर सकते हो। अभी आपको, आपने जो ऑपरेशन था आपने परफॉर्म कर लिया, अभी आपको नॉर्मल यूजर पे स्विच करना है। सिंपली आप
राइट करेंगे एग्जिट एंड प्रेस एंटर. सो नाउ यू हैव लॉग आउट फ्रॉम द रूट यूजर. ओके, आप इधर से लॉग आउट हो चुके हो रूट यूजर से और आप एक नॉर्मल यूजर में स्विच कर चुके हो. ठीक है, दिस इज द बेसिक कमांड which is used to switch between the super user, that is root, and the normal user, that is dollar prompt. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अभी मैं यहां पे अगर दूंगा sudo, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, जैसे ही आप टर्मिनल में आओगे कमांड लाइन इंटरफेस में, आपको इधर एक चीज करनी पड़ेगी, sudo apt, एक होता है आपका अपडेट, एंटर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा कुछ जो भी आपका जो भी डायरेक्टरीज है, जो भी नए नए वर्जन, जो भी कुछ भी अपडेट्स वगैरह है, सारा कुछ आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा अप टू डेट हो चुका है. ठीक है, तो ये कमांड रन करने से आपका जो भी डेटाबेस है, सारे पैकेजेस जो है आपके फ्री, जो जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं, वो सारे कुछ अप टू डेट हो जाएंगे. ये अपडेट वर्जन के लिए. ठीक है, sudo apt update, this is the command. And second one is sudo apt, एक होता है upgrade. This will upgrade your whole operating system and everything. Okay, so there are two करना होगा. Update, this is not mandatory, but to keep up to date with the latest features, आप अपडेट करोगे, that is better for you, so that it will interact with the operating system specification and everything. वो updated version आपके पास रहेगा. ठीक है, so ये अपडेट हो जाएगा. It will take, if you press the upgrade command, depending upon your upgrades available to your PC, it will take time. If it is taking long time, अगर आपका PC ले रहा है तो that means more upgrades आपके सिस्टम को चाहिए, that is it is downloading and installing each and everything, it will take time. But as of now मैं frequently इसको अपग्रेड करता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो it doesn't take much time. Okay, so these are the commands. Okay, next अभी हम लोग देखते हैं एक बेसिक कमांड. अगर आपको चेक करना है कि डेट, सिस्टम में अगर आपको चेक करना है डेट, आप प्रेस करोगे इंटर, आपके पास आ जाएगा आज की डेट, सैटरडे जनवरी 6, एंड दिस इज द फुल डेट. एंड अगर आपको चेक करना है कैलेंडर, इफ यू प्रेस CAL एंटर, तो जनवरी 2024 का आपके पास कैलेंडर आ चुका है. तो दिस इज द बेसिक कमांड, डेट एंड कैल. हाउ यू कैन यूज, इफ यू वांट डेट सेमीकोलन cal, if I run, so I have got both the commands at a time. This is the date and time, this is the calendar, so both. And here one thing you notice, this is semicolon, this is used to group two commands. Okay, अभी ग्रुपिंग और दूसरे जो भी इसके अंदर टर्मिनोलॉजी और कमांड्स यूज होंगे वो लेटर ऑन मैं बताते जाऊंगा. बेसिकली अगर आपको यहाँ पे ये लॉजिक सीखना है कि भाई सेमीकोलन क्या काम कर रहा है, तो हम दो कमांड्स इधर हमने डाले थे, डेट और कैल, सेपरेट कमांड हम रन किया था. इन प्रैक्टिकल, इन रियल टाइम आपको डिफरेंट कमांड्स आपको एक ही बार में यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो वो टाइम पे आपको ग्रुप करना पड़ेगा, दैट इज डेट सेमीकोलन कैल, दैट इज डेट एंड कैलेंडर यू आर displaying into the terminal. Okay, let's say this all you have, you get whatever you want. Now you have to clear the screen, just press clear enter. Now your terminal screen is clear. So these are the basic commands which you can perform in the Unix. Okay, so now moving on to the creating a file. So अभी हम लोग देखते हैं फाइल क्रिएट करना कैसा है. तो अगर मैं आपको बताऊंगा फाइल के रिलेटेड, अगर मैं आपको बताऊंगा, तो एक होता है आपका CAT, ओके, दिस सिंबल ग्रेटर देन फाइल नेम. फॉर एग्जांपल फाइल 1 में अगर मैं क्रिएट करता हूं, तो अभी यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ रहा है कि आई हैव टू टाइप समथिंग, दिस इज फाइल 1. ओके, दैट्स इट, दिस इज फाइल 1. अगर मैं इधर लिस्ट करता हूं तो मेरे पास एक फाइल है. सो cat is the command used to create a file if you are using cat greater than symbol file name. Okay, this is the syntax, cat greater than symbol
फाइल नेम, दैट इज इन अवर केस इट इज file1। ठीक है, जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमको फाइल के अंदर क्या डेटा लिखना है, इट इज गिविंग अस द ऑप्शन टू राइट द डेटा इनसाइड इट व्हाट यू नीड। तो हमने डेटा लिखा, उसके बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करने पे ये फाइल को सेव करके बाहर आ गया। ठीक है, और ये ls कमांड है जो कि आपके जो भी डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी आपके पास फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अवेलेबल रहेंगे वो सब आपको इधर मिल जाएंगे, लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ls के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस है, तो हम लोग उसके ऊपर लेटर ऑन मूव करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को ये बेसिकली फाइल सिस्टम के बारे में सीखना है। तो दिस इज वन कमांड। सेकेंड, अगर आपको देखना है कि कैट स्पेस file1, इफ आई प्रेस इंटर, अभी file1 के अंदर क्या डेटा है वो डेटा देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैट स्पेस file1 और हम लोग के पास डेटा आ गया है कि व्हाट इज द डेटा इनसाइड दैट file1। ओके, दिस इज द सेकेंड टाइप। ओके, एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है, लेट्स से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में है कि भाई मुझे अभी कुछ डेटा लिखना नहीं है, बस मुझे एक फाइल क्रिएट करना है विथ एनी नेम, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, टच, दिस इज वन टाइप ऑफ कमांड। ये कमांड से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, एम्प्टी फाइल, दैट इज 0 बाइट फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं दूंगा फाइल टू एंटर, अभी मैं इधर ls करूंगा तो यहाँ पे file1 which is created from cat command and it has some data, file2 which is created from touch command that is empty। okay, so अगर आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना है वो भी empty, touch space file3 space file4 space file5 और एनीथिंग, अगर आप स्पेस के बाद में अगर आप कुछ भी दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, फाइल 6 के बदले में अगर मैं फाइल स्पेस 6 दे दूंगा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी यहाँ पे कमांड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, अगर मैं ls दबाऊंगा तो अभी आप लोग देखिए फाइल तो हम लोग ने क्रिएट किया है सेपरेटली, 6 इज क्रिएट किया है सेपरेटली, तो स्पेस के बाद आप जो भी दोगे दैट इज काउंट एज वन कमांड। यहाँ पे फाइल 3 हमने विदाउट स्पेस दिया है, फाइल 3 क्रिएट हो चुकी है, फाइल 4 क्रिएट हो चुकी है, फाइल 5 क्रिएट हो चुकी है, फाइल 6 में हमने बाय मिस्टेक हमने दिया है यहाँ पे स्पेस, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो गए। सिस्टम विल अंडरस्टैंड दैट फाइल इज डिफरेंट एंड 6 इज डिफरेंट, सो इट क्रिएटेड 2 डिफरेंट फाइल्स। गॉट इट? सो दिस इज अ फाइल सिस्टम। अभी इसके बाद में हम लोग सीखेंगे VI। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को चेक करना है कि भाई फाइल 6 VI स्पेस फाइल हम लोग ओपन कर रहे हैं, सिर्फ फाइल, तो आपके पास एक यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा। ओके, यू आर इनसाइड द फाइल नाउ। ओके, आप फाइल के अंदर आ चुके हो, फाइल के अंदर आ चुके, आप यहाँ पे प्रेस करोगे आई बटन। ठीक है, आपको इधर प्रेस करना है आई। जब आप आई प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे लिखने के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हो, दिस इज फाइल एंड वी आर राइटिंग इट थ्रू VI एडिटर। ओके, अभी मैं प्रेस करूंगा एस्केप, जैसे ही मैं एस्केप प्रेस किया आई केम आउट ऑफ द राइटिंग कंसोल। अभी मैं इधर कुछ नहीं लिख सकता। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा शिफ्ट कोलन, जब मैं दबाऊंगा WQ, ठीक है, कोलन WQ, अगर मैं शिफ्ट कोलन जैसे ही दबाऊंगा मैं लास्ट लाइन में आ गया हूं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं जब यहाँ पे दबाऊंगा WQ तो W इज फॉर सेविंग व्हाट वी हैव राइट ऑलरेडी एंड वी आर क्विटिंग, सेव एंड क्विट। इफ यू प्रेस इंटर, अभी हम लोग फाइल के बाहर आ चुके हैं। लेट्स सी कैट स्पेस फाइल एंटर। सो अभी हम लोग ने VI एडिटर के अंदर, इनसाइड द VI एडिटर हम लोग ने परफॉर्म किया दिस कमांड और इसको सेव किया और एग्जिट किया, बाहर आ गए हम लोग ऑन द डेस्कटॉप मोड। अभी हम लोग कैट
कमांड की यूज से हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने जो लिखा वो प्रॉपरली सेव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग ए फाइल विद 0 बाइट टच कमांड यूज करके। और उसके अंदर कुछ डेटा यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं वीआई एडिटर। वीआई एडिटर के भी ऑल दी एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग हम बात करेंगे सेपरेट वीडियो में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। टच के बारे में बात करेंगे इन डिटेल्स, अभी बेसिकली मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको। तो जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे आपको सब एज पर दी कमांड्स आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्लियर करना है ये कंसोल, अभी मैं करूंगा क्लियर, एंटर, मेरा कंसोल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कैट कमांड, टच कमांड, वी कमांड, और हम लोग यहाँ पे फाइल क्रिएट करके उसको एडिट करके सेव भी किए हैं। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया है। अभी हम लोग को करना है डायरेक्टरी क्रिएट। डायरेक्टरी सेम इन विंडोज अगर हम कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। जैसा विंडोज में आपके पास फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर 1 फोल्डर 2, आप कोई भी फोल्डर के अंदर कुछ भी फाइल सकते हो। सेम इन दिस केस हम लोग फोल्डर वर्ड यूज नहीं करेंगे, लाइनक्स में होता है डायरेक्टरी। सो अभी हम लोग को एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, mkdir, दिस इज द कमांड यूज फॉर क्रिएटिंग द डायरेक्टरी स्पेस directory 1 I am creating. Now it has created the directory 1. Okay, what is the command? mkdir space directory 2 I am creating, enter. Got it? Let's see multiple directories how we can create. mkdir space directory 3 space directory 4, enter. अभी हमारे पास अगर हम लिस्ट करेंगे, अभी हमारे पास आ चुके हैं फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 एंड 6, और हमारे पास हो चुके हैं डायरेक्टरी 1, 2, 3, 4 डायरेक्टरीज आर देयर। ठीक है, तो एलएस जब आप रन करोगे तो सारे के सारे जो भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अवेलेबल रहेंगे पर्टिकुलर डायरेक्टरी में वो सब लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टरी इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू कलर एंड फाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस व्हाइट कलर। ओके, अभी मुझे अंदर जाना है, सपोज डायरेक्टरी 1 के इनसाइड मुझे जाना है, वहां पे जाके कुछ फाइल क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली करूंगा cd स्पेस डायरेक्टरी नेम। अभी मैं डायरेक्टरी 1 के अंदर इनसाइड द डायरेक्टरी आई एम गोइंग, इनसाइड दिस डायरेक्टरी 1 आई एम गोइंग cd change directory, I am using the command. If I press enter, now see, before we are on desktop, now we are on desktop पे हमारे पास एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम आ चुके हैं स्लैश डायरेक्टरी 1 के अंदर अभी हम लोग हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे हम लोग के पास ये इतने सारे फाइल्स थे जो कि हमने लिस्ट की ls कमांड यूज करके। अभी हमारे पास डायरेक्टरी 1 के अंदर जा चुके हैं हम लोग, अगर हम ls कमांड मारेंगे तो हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टरी 1 एम्प्टी है। अभी हम लोग यहाँ पे टच क्रिएट कर रहे हैं, टच फाइल 0 बाइट्स फाइल क्रिएट कर रहे हैं, फाइल 1, फाइल 2 अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं ls दबाऊंगा तो मेरे पास आ चुके हैं फाइल 1 एंड फाइल 2, दो फाइल्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्टरी 1 के अंदर है। अभी मैं cd स्पेस डॉट डॉट करूंगा तो मैं वापस डेस्कटॉप पे आना चाह रहा हूँ, दिस इज द कमांड। इफ आई प्रेस एंटर, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टरी 1 से एक स्टेप बैक आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, डेस्कटॉप पे अभी मुझे देखना है कि मेरे पास कौन से फाइल्स अवेलेबल है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मैं ls करूंगा तो मेरे पास डेस्कटॉप पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, और डायरेक्टरी 1 में मेरे पास फाइल 1 एंड फाइल 2 अवेलेबल है। ठीक है, अभी मुझे चाहिए एक डायरेक्टरी को अभी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास डायरेक्टरी 1 में तो कुछ डेटा है, दो फाइल से वो रखूंगा, डायरेक्टरी 2, 3 एंड 4 मैं डिलीट कर दूंगा। तो rmdir स्पेस डायरेक्टरी 2 अगर मैं डालता हूँ, एंटर करता हूँ, डायरेक्टरी 2 हमारी डिलीट हो चुकी है। लेट अस कंफर्म, ls से जब मैं क्रिएट करूंगा डायरेक्टरी 2 नहीं है हमारे पास। तो rmdir इज अ कमांड टू रिमूव द डायरेक्टरी विच आई एम डिलीटिंग, डायरेक्टरी 3। अगर हम लोग डायरेक्टरी 4 भी अगर हम करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, डायरेक्टरी 3 एंड डायरेक्टरी 4 इज डिलीटेड। हाउ टू कंफर्म ls? सी हमारे पास पहले हमारे पास 4 डायरेक्टरीज थे, डायरेक्टरी 1, 2, 3, 4। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच चुका है एक ही डायरेक्टरी। Let us delete that one directory, rmdir space directory 1,
अगर मैं डिलीट करता हूं तो यहाँ पे एक कैच है। ये कैच क्या है? RMDIR fail to remove directory 1, directory not empty. So difference between this is this only, कि ये जो हमारे पास डायरेक्टरी 2, 3 एंड 4 जो थे वो एम्प्टी थे, एम्प्टी डायरेक्टरीज थे, जो कि ये कमांड यूज करने पर चले गए, डिलीट हो चुके हैं। लेकिन डायरेक्टरी 1 हम डिलीट नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ डेटा है। देयर आर सम फाइल्स अवेलेबल इनसाइड दैट डायरेक्टरी, तो सिस्टम इज नॉट डिलीटिंग दैट। तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा rm स्पेस rf स्पेस डायरेक्टरी 1। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी हमारे पास लेट अस कंफर्म ls, अभी हमारे पास सिर्फ फाइल्स बाकी रह गए, डायरेक्टरी 1 इज आल्सो डिलीटेड। सो व्हाट इज दिस कमांड rm minus rf डायरेक्टरी 1? rm इज रिमूव हाइफन rf, rf इज r स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्सिव हम लोग फाइल डिलीट कर रहे हैं, और f हाइफन f इज फोर्सफुली वी आर डिलीटिंग द फाइल। डेटा है लेकिन फोर्सफुली हम लोग वो फाइल को डिलीट कर रहे हैं। So this is a command which is used to create the directories which has some data. Okay. Till now, if you have any doubt, just write it in a comment. हम लोग आपके कमेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो till now, if you have any doubt, please write a comment. If you understand this concept, अगर ये आपको समझ आ रहा है, साथ के साथ आप नोट्स बनाइए, और आप इसके साथ साथ आप जो है कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो भी हमको एक्नॉलेज कीजिए। अभी मैं यहाँ पे क्लियर दबाऊंगा तो मेरे पास हो चुका है यहाँ पे सारा कुछ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अभी देखना है VI एडिटर, LS, चेंजिंग दी, आपके जो फाइल परमिशन है उसको चेंज कैसा करते हैं, और बहुत सारा कुछ इसमें बेसिक कमांड्स में ऐड करूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो शॉर्ट रखने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली इतना सीखे हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस डेट, कैलेंडर और आपका LS के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आप उसको कैसा यूज कर सकते हो, VI एडिटर के थोड़े जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर एडिटर को कैसा यूज करना है, कौन से उसके अंदर आपको कमांड्स यूज करने हैं, वो हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक फाइल को कॉपी कैसा करते हैं दूसरी जगह पे, एक फाइल को रीनेम कैसा करते हैं, दैट इज आल्सो वी विल लर्न। सो और कैट फाइल के अंदर भी हम लोग सर्टेन ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो भी करेंगे। तो बेसिक ऑपरेशंस हमारे जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में हम परफॉर्म करेंगे, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज आई है, उसमें ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है। अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है जो कि प्योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो जाइए देखिए पार्ट 1, और नेक्स्ट वीडियो विल बिकम इन सम डेज सून। अभी मैं यहाँ से प्लान कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको वीडियोस बना के डालूं, और मोस्ट प्रोबेबली अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग शॉर्ट्स भी बनाएंगे टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो गेट रेडी फॉर सम गुड वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियोस अभी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आप लोग को जो भी प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक्स है जो मैंने क्रिएट किए हैं, जैसा कि आपको VMware वर्कस्टेशन किधर से डाउनलोड करना है, उसको कैसा इंस्टॉल करना है, और वर्चुअल मशीन कैसा बनाना है, Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसा करना है, और हिस्ट्री ऑफ Linux एंड यूनिक्स, ये सारे कुछ जो वीडियोस है बेसिकली रिलेटेड टू दिस वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप लोग उधर जाके देख लेना टू गेट ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। और लाइनक्स के जो कमांड्स है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये कमांड बाय हार्ट नहीं होंगे। आपको टाइप जब करोगे, आप प्रैक्टिकली जब आप इसको यूज करोगे, तभी आपको ये पूरे से कुछ एरर्स आएंगे, कुछ आपको एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं होगा। वो टाइम पे आप हमको क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो। मैं आपको एक कम्युनिटी लिंक दे दूंगा, ये आपका टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां पे जाके आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, डाउट्स आप पूछ सकते हो, तो वो आपको बहुत वैल्यूएबल होगा। तो आई होप यू गाइस गेट द कॉन्सेप्ट, गेट दिस कमांड्स, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो प्रैक्टिस कीजिए, स्पेंड सम टाइम ऑन प्रैक्टिसिंग दिस कमांड्स। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स या जो भी कुछ सीखना चाह रहे हैं IT में, तो वो लोग को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच
and we will upload the next video soon. Thank you everyone. Bye bye.